Hello, this is Amisha Jha, student of Government Women's Polytechnic College, Bikaner. This is my final year project guided by Mrs. Sushila Barton, and the topic of my project is distance measurement using Arduino and ultrasonic sensor. Distance measurement using Arduino and ultrasonic sensor is a very easy project to measure shorter distance precisely. The project is designed to develop distance measurement system using ultrasonic waves and interfaced with Arduino. We know that human audible range is 20 Hz to 20 kHz. We can utilize these frequency range waves through ultrasonic sensor. Measurement systems are used in motor vehicles like car, buses. The components which are used in the project are breadboard, Arduino, sensor, USB cable and jumper wire. First is Arduino Uno. The Arduino Uno is a microcontroller board. It has 14 digital input-output pins, 6 analog inputs, 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header and a reset button. It contains everything which is needed to support the microcontroller. Simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC to DC adapter or battery to get started. So now there are the power pins like memory and input output pins on this board. As you can see that there are some numbers on this board which represents like number 1 which is a power USB, 2 is a power or a barrel jack, 3 is a voltage regulator, 4th it is crystal oscillator, 5th and 17 is Arduino reset, 6, 7, 8 and 9 are 3.3, 5 ground and V in pin, 10 is the analog pins, 11 represent main microcontroller, 12 ICSP pin, 13 power LED, 14 TX and RX, and now it's an ultrasonic sensor. So the ultrasonic sensor uses a sonar to determine the distance of an object like the bats too. It usually emits an ultrasound at 40,000 Hz which travel through the air, and if there is an object or obstacle it will bounce back, and considering the travel time and the speed of the sound we can calculate the distance. The pin of ultrasonic sensors are VCC, trigger, echo and ground. These are the 4 pins. एंड देन एज आई सेड पहले ही मैंने बता दिया कि अल्ट्रासोनिक सेंसर की वर्किंग क्या होती है, कि जैसे इट एमिट्स अल्ट्रासाउंड एंड देन विच ट्रैवल्स थ्रू द एयर. उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने प्लेस्ड हो तो इट विल बाउंस बैक, एंड उसके बाद जो it will consider the travel time and the speed of the sound, and then we will get to know that जो object है वो कितने distance पे है. तो इसके बाद है जो कंपोनेंट जो मैंने यूज़ किया वो ब्रेडबोर्ड. तो बेसिकली जो ब्रेडबोर्ड है वो क्या है कि इट इज़ अ शोल्डरलेस डिवाइस फॉर टेम्पररी प्रोटोटाइप. तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है दे कैन बी इंटरकनेक्टेड बाय इंसर्टिंग देयर लीड्स or terminal into the holes. तो the connections of the breadboard क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं, और जो elements है they can further be reassembled and reused without any damage. एंड अब जो है लाइक ब्रेडबोर्ड उसमें बेसिकली 2 टाइप्स के स्ट्रिप्स होते हैं, टर्मिनल एंड बस स्ट्रिप्स. तो जो टर्मिनल स्ट्रिप्स होते हैं वो तो जो कंपोनेंट्स है या एलिमेंट्स है उनको होल्ड करने में मदद करते हैं, और जो बस स्ट्रिप है वो उसको लाइक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को पावर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. फिर ब्रेडबोर्ड जब हम उसको उसके अंदर कंपोनेंट्स डालते हैं तो उसके लिए भी ब्रेडबोर्डिंग टिप्स हैं. उसके बाद है
यूएसबी केबल, जो भी हम जब आर्डिनो प्रोग्राम करेंगे तो जो कोड हम उसके अंदर डालेंगे वो हम डालेंगे थ्रू यूएसबी केबल। ये बहुत कॉमन है, यूएसबी केबल हम मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज़ करते हैं। देन है जंपर वायर। तो जंपर वायर्स क्या है, एक सिंपल वायर है दैट हैव कनेक्टर पिन्स एट ईच एंड विच अलाउइंग देम टू बी यूज टू कनेक्ट टू पॉइंट्स टू ईच अदर विदाउट सोल्डरिंग। जैसे हम पीसीबी में अगर वर्क करते हैं तो पीसीबी पर हमें सोल्डरिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमें सोल्डरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इट्स वेरी फेयरली सिंपल। उसके बाद क्या है, मेरे जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैंने कनेक्शंस कैसे किए थे। तो क्या हुआ था कि मैंने यहाँ पे जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसके जो 5 वोल्ट का जो पिन है उसको मैंने 5 वोल्ट जो आर्डिनो है उससे कनेक्ट किया। उसके बाद जो ट्रिगर पिन है अल्ट्रासोनिक सेंसर का वो मैंने कनेक्ट किया आर्डिनो के पिन 7 से। जो इको पिन है वो मैंने कनेक्ट किया पिन नंबर 6 से। और जो ग्राउंड पिन है वो मैंने कनेक्ट किया आर्डिनो के ग्राउंड से। ये मेरे कनेक्शंस। उसके बाद आर्डिनो का सॉफ्टवेयर, तो बेसिकली इसके अंदर आर्डिनो IDE में IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है जो कि arduino.cc ने इंट्रोड्यूस किया था, which is mainly used for writing, compiling and uploading the code in the Arduino device। और ये compatible है, मतलब जितने भी Arduino modules है are compatible with this software। और क्या है कि ये कोई भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं, मैक हो गया, विंडो हो गया, कोई भी। उसके बाद क्या होता है हम उसके बाद देखते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट द बोर्ड। तो बेसिकली मेरा जो बोर्ड है आर्डिनो यूनो है COM4। तो हम इस टाइम पे जब हम अपलोड करेंगे प्रोग्राम तो हमें ये देखना पड़ता है कि पोर्ट कौन सा है। वी हैव टू सेलेक्ट द पोर्ट एंड ऑल्सो द बोर्ड सेक्शन। तो मेरा जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर COM4 है पोर्ट। एंड इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक बार अगर आपने राइट कर लिया प्रोग्राम, कंपाइल कर लिया एंड अपलोड कर दिया, तो वंस यू अपलोड द कोड आर्डिनो बोर्ड के ऊपर TX एंड RX LEDs नाम से एक LEDs है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर जाते हैं, विच शोज़ दैट द डिज़ायर्ड प्रोग्राम इज़ रनिंग सक्सेसफुली। एंड इसका अमेजिंग थिंग ये है कि इसमें कोई भी प्रायर अरेंजमेंट या बल्क ऑफ मेस की ज़रूरत नहीं पड़ती टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। इट्स वेरी ईजली अवेलेबल एंड यू कैन जस्ट फर्स्ट राइट द प्रोग्राम एंड देन यू कैन जस्ट अपलोड इट विद इन मिनट और सेकेंड्स। तो ये बहुत ऐसे ईजी एंड अमेजिंग थिंग है। एंड देन उसके बाद है स्केच। तो जब हम आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो इस टाइप का ये ओपन होगा। तो इट ओपन्स अ न्यू स्केच फाइल बाय क्लिकिंग न्यू। यू कैन सी जैसे यहाँ पे येलो कलर में जैसे शो कर रखा है, और इसके अंदर ये सब ऑप्शंस भी दे रखे हैं जैसे कि फाइल है, एडिट एंड ऑल। उसके बाद है आर्डिनो कोड। ये कोड क्या है, यही कोड मैंने अपने IDE जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर राइट किया एंड अपलोड किया, जिससे कि मेरा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। तो ये मेरा कोड। एंड लास्ट में क्या है, रिज़ल्ट क्या होगा इन सब का कनेक्शंस एंड ऑल के बाद, कि मुझे मेरे जो IDE सॉफ्टवेयर है उसके स्क्रीन पर जो सीरियल मॉनिटर है उसके ऊपर मुझे शो करेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, सेंटीमीटर और इंच में। तो लास्ट का कंक्लूजन यही है कि वी विल गेट टू नो कि हमारा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है, एंड वी विल गेट टू नो द शॉर्टर डिस्टेंस वेरी प्रिसाइजली एंड इन अ वेरी गुड मैनर। एंड डिस्टेंस मेजरमेंट एंड बेसिकली मैंने पहले ही बताया था अल्ट्रासोनिक सेंसर कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंड ऑल। उसके बाद है मेरे प्रोजेक्ट, यानी ये जो वर्किंग है। मैंने पहले आपको इनके कंपोनेंट्स और के बारे में, कनेक्शंस के बारे में बता दिया था कि मैंने कैसे कनेक्शंस किए, क्या क्या कंपोनेंट्स मैंने इस्तेमाल किए, ये इसका पूरा एक वीडियो। एंड नाउ यू कैन सी मैंने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है सेंसर के सामने, जो कि स्केल पर आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर पर है प्लेस। और
ये मुझे पता है एंड यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो कि जो नीचे की तरफ है सीरियल मॉनिटर, उसमें भी इट शोज़ 1 इंच एंड 3 सेंटीमीटर। देन मैंने अपना पोजीशन चेंज किया, अब है ये 4 पे एंड सीरियल पे भी ये 4 पे है। तो ये इसी टाइप यही है मेरा प्रोजेक्ट, और ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। सो थैंक यू।